हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनआईएस बोर्ड का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान चैप्टर 6, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। रिलीजियस एंड सोशल अवेकन इन द कॉलोनियल इंडिया, यानी औपनिवेशिक भारत में धार्मिक एवं सामाजिक प्रगति। बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये चैप्टर हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ रहे हो, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हो, यूपी बोर्ड के बच्चे हो, बिहार बोर्ड के बच्चे हो, इवन कि जो बच्चे कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें हम हर एक विषय पर विस्तार पर चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पर जो है प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The one next topic is the most important here, impact of the reform movement on Indian society. You know that there is the most important topic here, impact of the reform movement on Indian society. The reform movement was able to be create a social religious consequence, and among there is Indians during to the 19th century. All this movement led to the stress on the rational understanding of social and religious ideas and encourage a scientific and humanitarian outlook. The reformers felt that a modern idea and culture could be best embedded by the integrating them into the Indian culture stream. The introduction of the modern education and guided the Indian toward to the scientific and rational approach to be life. All the movement worked to improve the human's status and criticize the caste system, especially their practice of untouchability. You know that there is an important point here. The introduction of the modern education's guide to be Indian toward a scientific and rational approach to be life. All the movement and work to improve the women's status and criticize the caste system, especially their practice of untouchability. This movement looked for a social unity and stable toward to the liberty, equality, and fraternity. There is the most important here, liberty, equality, and fraternity. That's important. The next point here, important was given to be introduction, especially human education. There is a important word here. Was given to education, especially women's and education. Some legal measures were introduced to raise their status of women. For example, sati pratha and infanticide were declared of illegal. Sati pratha and infanticide, there is a illegal on our society on this period of time. With the remarriage was made possible, their law passed in 1856 and condition of widows improved. A law passed in 1872 and contained to the intercaste and intercommunal marriages. The marriageable age of girls was the raised to be 10 by law passed on 1860. And further, Sardar Act was passed in 1929 and preventing child marriage also. According to it, a girl below to the 14th and boy below to 18 cannot be married. The impact of the effort of this reformer was most evident in the national movement. A large number of women come out of the take part in the freedom struggle. The role of women like a Captain Lakshmi Saigal of Indian National Army. You know that
the role of women like Captain Lakshmi Saigal of Indian Army and Sarojini Naidu, Annie Besant, Arun Ali Salif Ali, and many others was extremely important in the freedom struggle. Women now come out of the Pradha and took up the job. There is the most important achievement for the women in this period of time. The president as a effort of the reformer had an immense impact on society. The religious reform movements instilled in their mind of Indian greater self-respect and self-confidence and pride in their country. And this reform movement helped many Indians to come to terms with the modern world. People become a more consequence and there is identity as an Indian. It was ultimately responsible for their united struggle against their British in the freedom movement of India. That is the most important achievement of in this time. In the 20th century, especially after 1999, the Indian national movement became a main propaganda of the social reform. Indian language was used to reach the masses, and they also use a novel, drama, short story, poetry, the press, and in the 1930th century as it used to be cinema to spread their view. The movement promoted the feeling of self-confidence and self-respect, awareness and pluralism, and thereby their development of feeling of national consequence. That is the most important achievement. There is self-confidence, self-respect, awareness. Do you remember reading about some of the novel and seeing him a film related to the independent movement? For a beginning, start making a list some such as a author this book, make a list of some film also. Also make a list some of song. Maybe this clue will help us. इंसाफ की दगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के, और वंदे मातरम and song of Lata Mangeshkar in the same film. There is a most important moment on the film industries. आगे जो हमारे समक्ष आया है भारतीय समाज पर सुधार आंदोलन के प्रभाव. देखिए भारतीय समाज का जो है सुधार आंदोलन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और जनजीवन जो है उस सुधार के कारण ही आज काफ़ी सुधर चुका है. लेकिन कहते हैं हम फिर पुराने जो है आंदोलनों की ज़रूरत है आज के समय, क्योंकि आज हमारे समाज में बहुत से ऐसी बुराई है जो घर करती चली जा रही है. तो बात करें हम भारतीय समाज सुधार आंदोलन के अंतर्गत, तो कहते हैं 19वीं सदी के दौरान भारतीय समाजी धार्मिक आंदोलन भारतीयों के बीच चेतना पैदा करने के समक्ष थी. यानी देखा जाए तो भारतीयों में चेतना पैदा करने की ज़रूरत थी और उनको इस बात को एहसास कराना महत्वपूर्ण था कि क्या चीज़ उनके लिए सही है और क्या चीज़ उनके लिए गलत है. कहते हैं गलत चीज़ों का कभी अनुसरण करना नहीं चाहिए और अच्छी चीज़ों का कभी छुपाना नहीं चाहिए. इस सभी आंदोलनों ने सामाजिक और धार्मिक विचारों को समझने में तर्कसंगत और सहायता की तथा वैज्ञानिक और मानवीय दृष्टिकोण को काफ़ी प्रोत्साहित भी किया. ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मानवीय विचारधाराओं को जो है प्रोत्साहित किया गया. सुधारकों ने यह महसूस किया कि आधुनिक विचार और संस्कृति के भारतीय संस्कृति धाराओं में एकीकृत करके जो है आत्मसात किया जा सकता है. यानी संस्कृति के भारतीय संस्कृति धाराओं में एकीकृत करके जो है आत्मसात किया जा सकता है और आधुनिक शिक्षा का परिचय जीवन के लिए एक जो है वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण की दिशा में भारतीयों को निर्देशित भी कर सकता है. कि देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि आधुनिक शिक्षा का परिचय जो जीवन के लिए एक वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण की दिशा में जो भारतीयों को निर्देशित कर सकता है. अब आंदोलन ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए काम किया और जाति व्यवस्था विशेष रूप से अधस्था की आलोचना भी की. यानी जो छुआछूत की भेदभाव थी उस पर जो है काफ़ी आलोचना भी की. वो आंदोलन सामाजिक स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की दिशा में कार्य करती हैं. यानी जो भी आंदोलन हमारे समाज में चलाया गया इसे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया. शिक्षा में विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा को महत्व दिया गया, क्योंकि एक बात आपको शायद ज्ञात ही होगा, अगर आप एक महिला को पढ़ा देते हो तो उसको कहते हैं 7 पुस्त जो है पढ़ा लिखा ही बनेगा, क्योंकि महिला के समक्ष बच्चे काफ़ी मिले जुले रहते हैं. इसलिए महिलाओं की शिक्षा को काफ़ी महत्व दिया गया. महिलाओं की शिक्षा को बढ़ाने के लिए कुछ कानूनी उपाय भी किए गए. उदाहरण के लिए सती प्रथा
और शिशु हत्या का जो है बोध घोषित कर दिया गया, जो कि काफ़ी जरूरी था उस समय। 1856 में पारित कानून ने पुण्य विवाह संभव बन गया और विधवाओं की स्थिति में सुधार भी किया गया। 1872 में पारित कानून अंतर जातीय और अंतर सांप्रदायिक विवाह को मान्यता भी दी गई, जो कि जरूरी था। 1860 में पारित कानून द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र जो थी 10 वर्ष तक बढ़ा दी गई और बाल विवाह को रोकने के लिए उसके बाद सरदार अधिनियम 1929 को पारित किया गया। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम की लड़की और 18 वर्ष से कम का लड़का शादी नहीं कर सकती हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी था कि 14 से कम उम्र की लड़कियों को शादी करने की कोई अनुमति नहीं थी और 18 साल से लड़के को कम को जो है मैरिज को अधिकार नहीं दिया गया। आज इसका जो प्रावधान बदल गया है, लड़कियों का 18 साल कर दिया गया है, लड़कों को 21 साल कर दिया गया है, क्योंकि आज समय की मांग है। आज लड़की भी अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है और इसके लिए जो विवाह से दूर रहने में काफ़ी इसको महत्वपूर्ण रहेगा। इन सुधारकों के प्रयासों सबसे स्पष्ट प्रभाव राष्ट्रीय आंदोलन पर दिखा। महिलाओं की एक बड़ी संख्या आज़ादी के संघर्ष में भाग लेने के लिए घरों से बाहर आई, क्योंकि वो शिक्षा ही था जो उनको घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। कहते हैं उस समय पुरुष जो थे घर में बैठ गए थे, लेकिन महिलाओं ने आगे बढ़ के जो है आंदोलन में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, क्योंकि उनको समझ आ चुकी थी। तब जाके पुरुष महिला मिलके भारत में जो है आंदोलन चलाए और भारत की स्वतंत्रता में अपनी नींव सुनिश्चित किया। इंडियन नेशनल आर्मी की कैप्टन लक्ष्मी सहगल की तरह महिलाओं की भूमिका सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुण अफजल अली अन्य स्वतंत्रता संग्राम की अति महत्वपूर्ण है। अब देखिए कैप्टन लक्ष्मी सहगल की, तो आप समझ सकते हो कि उस समय कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी जो इंडियन नेशनल आर्मी की मुख्य थी, कैप्टन थी। ये आम बात नहीं है महिलाओं के लिए, गौरव के लिए। महिलाएं अब पर्दे से बाहर आई और नौकरियां करने लग गई, यानी महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना शुरू कर दिया। सुधारकों के जो है लगातार प्रयासों ने समाज पर भारी प्रभाव डाला और धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारतीयों के मन में अधिक आत्मसम्मान और आत्मविश्वास और देश के प्रति गर्व का भाव जगाया। इन सुधार आंदोलन ने अनेकों भारतीयों के आधुनिक जो है दुनिया के साथ जोड़ भी दिया। लोग भारतीय के रूप में पहचान बनाने में अधिक जागरूक भी हो गए। अंततः लोगों का एकजुट होना भारत का स्वतंत्रता आंदोलन के विरुद्ध संघर्ष का जिम्मेदारी हो गई। यानी देखा जाए तो ये शिक्षा का स्तर ही था जो लोगों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो उनको अपने देश के लिए जो है सुधार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए दोस्तों, शिक्षा वो चीज़ होती है, वो चीज़ वस्तु है जिसको कोई आपको से छीन नहीं सकता। ठीक है, ये जितना बांटिएगा उतना ये फैलता है और शिक्षा से हमें एक जागरूक नागरिक भी बनाता है और लोग बड़े बड़े लोगों की जो है प्रादंड में यानी उनके चापलूसी में नहीं आने को जो है हमें रोकता है। इसलिए शिक्षा बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपके समाज में या आपके क्षेत्र में कहीं भी कुछ गलत है तो उसको अपने शिक्षा के स्तर पे ला के उसको देखिए, समझिए और विचार कीजिए, क्या जो व्यक्ति बोल रहे हैं सामने, क्या ये उचित है, क्या ये हमारे देश के कल्याण के लिए है, क्या हमारे पर्यावरण के लिए है। तो इस पर आपको सदैव विचार करके ही आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा हमें जो है जिम्मेदार बनाता है, जिम्मेदार नागरिक बनाता है और एक अच्छा नागरिक होने का सबूत भी देता है। 20वीं सदी में और 1919 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सामाजिक सुधार का मुख्य प्रचालक बन गया। यानी 20वीं सदी में जो है 1919 के आसपास सामाजिक सुधार ने बहुत काफ़ी प्रचलित हो गई। स्वतंत्रता ने विचारों को भारतीय भाषाओं के द्वारा जनता तक पहुंचाने के लिए प्रयोग भी किया गया। यानी देखा जाए जो है विचार भारतीय भाषाओं में ही जनता तक जो है पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान हुआ। उन्होंने 1930 में उपन्यास, नाटक, लघु कथाएँ, कविता, प्रेस और सिनेमा को अपने विचारों को जो प्रचारित करने में प्रयोग किया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है मुंशी प्रेमचंद जी का है, जिन्होंने अपने जो उपन्यास और लेखों से पूरे जनजीवन को ही बदल के रख दिया। प्रेमचंद और लिखना चाहते थे, लेकिन कहते हैं समय की एक मांग होती है, समय की सीमा होती है, लेकिन उनके योगदान को हम भुला नहीं सकते। उन्होंने उपन्यास ऐसे लिखे जो आज भी हमारे शिक्षा का माध्यम बनी हुई है। आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, जागरूकता, देशभक्ति एवं विकसित राष्ट्र चेतना की भावना आंदोलन को बढ़ावा दिया। कहते कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसमें आत्मविश्वास नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है और जागरूकता नहीं है
और देश के प्रति कर्मनिष्ठा नहीं है तो व्यक्ति किसी काम का नहीं है, क्योंकि आत्मविश्वास हमें अपने आप को अच्छा बनाने के लिए प्रेरित करता है। आत्मसम्मान से हमारी जो है समाज में सम्मान बढ़ती है, और जागरूक रखने से हम वो गलत चीज़ों से दूर हो सकते हैं जो हमारे समाज के लिए खतरनाक होता है। और सदैव देश के हित में सोचना ही देशभक्ति का निशानी होता है। क्या आपको याद है कि उपन्यास को पढ़ने और कुछ स्वतंत्रता आंदोलन में संबंधित फिल्मों को भी आंदोलन का हिस्सा माना जाता है? बहुत से ऐसे फिल्म बनाए गए जो हमारे देश के आंदोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। आरंभ के लिए कुछ इस तरह के लेखकों और उनकी पुस्तक की सूची बनाएं, कुछ फिल्मों की भी सूची बनाएं, और इसके अलावा कुछ गीतों का भी सूची होना चाहिए। कहते हैं इसमें आप देखिए, सूची में देखिए, इंसाफ की डगर पे, बच्चे दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के, या वंदे मातरम। ये सारे ऐसे फिल्में और गाने थे जो देश को प्रगति करने के लिए और देश में चेतना जगाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। ऐ मेरे वतन के लोगों, आपको पता ही है, जब एक सॉन्ग गाया गया तो कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी आंखों से आंसू आ गई। तो इसका मतलब इस गाने को बहुत दर्द है और काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे समाज में आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे का चैप्टर और भी महत्वपूर्ण है, तो आपको इसके त्रिपाण सेंटर के साथ बने रहना पड़ेगा। अगर आप त्रिपाण सेंटर को हेल्प करना चाहते हो, मन से हेल्प करने का विचार है, तो इतना कार्य अवश्य करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों में, क्योंकि जो अगर आपका ये सिलेबस हो सकता है तो आपको दोस्तों का भी होगा। दोस्तों, एक बात सदैव याद रखना, एक व्यक्ति शिक्षित होने से हमारा समाज सुधार नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना अनिवार्य है, और जब शिक्षित सारे व्यक्ति हो जाएंगे तो हमारे देश में जो है कहते हैं बेरोजगारी, जॉब की सारी समस्या नष्ट हो जाएगी। क्योंकि आज व्यक्ति पढ़े लिखे न होने के कारण सरकारों के चलपुलसी बातों में आ जाते हैं और उनको विजय हासिल करवा देती हैं, और इसके बाद सरकार कभी सोचती नहीं है, और जो हमारे देश के जो नौजवान हैं वो विदेश की तरफ रुख कर रहे हैं। तो इसलिए आपको शिक्षा की ज़रूरत है, और हर क्षेत्र में जाना शिक्षा जरूरी है। अगर आपको ये बात समझ में आई तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, और शेयर करने कुछ नहीं करना, वीडियो से लिंक करके यूट्यूब पे आपको लिंक दिख रहा होगा, शेयर का बटन भी दिख रहा होगा, शेयर कीजिए और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दीजिए। इससे जो बच्चे आपके संपर्क में होंगे उन तक ये वीडियो पहुँच जाएगा, और वो भी जो है इस बातों का अनुसरण कर सकेंगे। पहली बार वीडियो देख रहे थे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मोबाइल में सेव अवश्य कीजिए, क्योंकि सेव कीजिएगा तभी जो है आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर जो है 8th से लेके MA तक के बच्चों के लिए अग्रसर है, और ये सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लेकिन तब मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करके रखोगे। और सब्सक्राइब करके कुछ नहीं करना है, आपको जो रेड बटन दिख रहे हैं सब्सक्राइब का, उसको दबाइए और त्रिपाण सेंटर के साथ जुड़ जाइए।